Hello everyone, welcome to Jagrati Yatras, Meet the Yatripreneur Google Hangout series. My name is Anant Krishna, I'm your moderator for the evening. Please use the Q&A tab on your right to ask some questions if you need to, and I'll call you out when your time comes. Also, before we meet our guest, if you want to be featured in these series, please do contact ashwinyogesh@gmail.com. Again, that's one word, ashwinyogesh@gmail.com. He's the producer of the show and we'll be happy to have you. So today's entrepreneur, Yatripreneur is Pundlik Wagh, and he actually has a couple of enterprises. We'll start with Vayuva, his corporate training enterprise, and we'll talk about the other one as well. Pundlik, welcome to Yatripreneur series. Thank you. Pundlik, let's start. आपके background के साथ. Tell me a little bit about intro about who you are, what do you do, in your own words. Okay, Anand, namaste. I am born in farmer's family. We have farm at Ellora. That's a very famous place in all over the world. And my basic education I completed from Ellora. Then I went to Pune. I completed M.Com. And after that, did job for 2 years. And later, that was a turning point. And after that, something good or something creative started happening in my life. I joined Tata Jagrati Yatra first time in 2008. I traveled across India with Yatra, met so many people. Later, I went back and first thing after doing the Yatra, means Jagrati Yatra, I went back and resigned the job. Later, I was thinking what should do. So then I went to Chennai Mission. I did a program there that's called Youth Empowerment Program. And after that program, I went on a bike. That program is they teach us for 3 months, and then we have to serve for the nation for 1 year. It's a selfless service. So in that service period, I went on a bike. I met different people, mainly youngsters across the India. I used to talk with them, and after coming back from the Yatra, I started my business. So that is Vayuva, right? Yeah, that's Vayuva first thing. So Vayuva was founded in 2010. What exactly does Vayuva do? What is your target market? Where are you operating from? And what is your team size? Let's get to it. We are basically from Pune. And Vayuva started because we used to do corporate training programs. Right. And जब वो प्रोग्राम शुरू हुए तो बहुत सारे बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग आते थे, इंजीनियर्स, कोई डॉक्टर्स, और मैं ये सोचता रहता था हमेशा कि अरे ये इतने पढ़े लिखे फिर भी इनको ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है. So that was something strike me, और हमने Vayuva शुरू किया कि जो हम यंगस्टर्स को ट्रेनिंग ले सके. Right. Yeah. In college period only, we started giving the programs like that. We focus on outbound training programs. That is adventure sports, some activities, and with that we conduct training programs. So this was the main theme of Vayuva. And that word Vayu, actually we take to the युवा. युवा युवक को हिंदी में युवा कहते हैं, और युवा का उल्टा ही किया जाए तो उसका वायु होता है. So this was the combination of युवा and Vayu. Means Vayu and Yuva. That was Vayuva. Right. So, आपने इतना travel किया Pundlik, did you feel, and the Yatra of course, so with all these travels and with all the insights you got, talking to so many people, did that form the foundation for Vayuva? Yeah, that was the foundation. Because when I came back from my bike Yatra, I started thinking that what should I do next? Like continuing the job, that was my first option for me. But I decided that I will not go for a job, and I think that was the base which helped me, which pushed me to start my own business. Right. So when you set up to do Vayuva, did you have a co-founder with you, or आपने अकेला किया? No, I was alone. No co-founder. Yeah. अच्छा. तो feedback कैसा मिला आपको? तो आपने जब सबसे पहला ट्रेनिंग किया तभी आपको वो feedback मिला और continuous improvisation हुआ कि कैसे किया आपने? पहला जो प्रोग्राम था वो तो हमें एक पहचान से मिला था. कॉलेज, मेरा जो कॉलेज है उन्हीं का ही हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, और उसके बाद कॉर्पोरेट में हमने शुरू किया कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. तो कंटिन्यूसली वो बढ़ता गया. मींस पहले छोटा ग्रुप आता था, उसके बाद वो बड़े ग्रुप और बड़ी कंपनियां वो सब आने लगी. तो दिस इज हाउ वी डेवलप्ड. You say fear management, you say self management, and you say value-based leadership. Can you explain some of these terms? Because fear management, ये क्या होती है? मुझे डर लगता है, मैं ये नहीं करूँगा, तो you're going to take my fear out? Is that what you're guaranteeing? Then I'll come. Yeah, I guarantee. See, we conduct many adventurous programs in fear management workshop.
हाँ. एक्चुअली एक डर एक ऐसी चीज है कि जो हमें कुछ नहीं करने देती। जिंदगी से हम हर चीज को डरते रहते हैं, माँ बाप को डरते हैं, उसके बाद आपने थ्री इडियट देखा होगा, उसमें बहुत सारी चीजें बताई है इसमें इसके बारे में। Right. तो यदि हमारे मन से हम डर हटा सकते हैं तो जिंदगी में हम कुछ भी जो सोचे वो सब कर सकते हैं। So that was the best. First, I applied it for myself. मैं बहुत डरपोक था पहले बचपन हाँ. में। हाँ. तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्या मैं ये डर निकाल सकता हूँ क्या। तो बहुत प्रयास करने के बाद मुझे समझ में आया कि या आई कैन बी फियरलेस। तो जब मैं यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम किया तो उसमें पहले बार हमको फियर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग दिया गया, और उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग मेनी थिंग्स। और मुझे खुद को चेक करने के लिए मैंने बाइक पे अकेले यात्रा की थी पूरी भारत में, क्या मैं फियरलेस हूँ या नहीं। और उसके बाद बहुत सारे वर्कशॉप्स तैयार किए, जिसमें कुछ पॉइंट्स हो गए और बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई। और ऐसे वर्कशॉप्स लेकर हम फियर मैनेजमेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए और कॉर्पोरेट के लिए। So give me an example of a fear you had, like, and how you overcame that, just as an example. या पहले तो बचपन में घर से बाहर निकलना ये सबसे बड़ा डर लगता था। घर में ही रहे, पढ़ाई होने के बाद जब 10वीं हुई उसके बाद जब बाहर निकले तो डर लगता था। जब पुणे आया तो जागृति यात्रा में पार्टिसिपेट होना या कहीं और घूमना, तो उसे डर लगता था। लेकिन जब मैं सोचा कि यार डरना किससे को है, हम तो ऐसे ही डरते रहते हैं और देयर इज नथिंग। यदि हम सोचते हैं अच्छी तरह से तो जो चीजों को हम डरते हैं उससे डरने लायक कुछ होता ही नहीं है। Right. तो ये सब समझ लेने के बाद मैंने उस पर प्रयोग करना शुरू किया, और बाद में देखा कि यार डरने की कोई बात नहीं है। अब यदि हम डरना छोड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकती हैं कि जिंदगी में जो हमने कभी सोचा भी नहीं। Right, but you target youth, you target school children, you target corporates. तो काफी या वेरिड ऑडियंस है। या तो इसमें फर्क क्या है? What do you see? How do you structure it, your programs to these varied audiences? And why do you target everybody? या I mean, usually people target only one sector, right? I mean, या this is very diverse sector. या उसकी जरूरत क्या है ना, जब हम एक चीज शुरू करते हैं तो दूसरी चीज अपने आप सामने आके खड़ी होती है। Right, जब हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया और उसमें जो एक्सपीरियंस हम लेते रहे हैं, right, यदि उनको हम वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट सिखा रहे हैं तो उनका मन नहीं लगता। और कई बार हमने ये अनुभव किया कि कॉर्पोरेट वाले आते हैं, एंजॉय करते हैं, उनको ट्रेनिंग में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है, और वो आके एंजॉय करके अपने पीना खाना, डांस करना, डीजे लगाना, ये सब करके चले जाते हैं। तो तब हमने सोचा कि अरे इनको पढ़ाने में कुछ मतलब नहीं है। तो दैट वाज जस्ट फॉर बिजनेस। लेटर वी फोकस्ड ऑन यूथ। हमने सोचा कि हम यंगस्टर्स को फोकस करेंगे क्योंकि जो आगे जाएंगे और उनके अंदर अपने आप वो सब चीजें होगी। जब हमने यूथ के लिए शुरू किया तो उसके बाद सामने नजर ये आई बात कि यदि हम बच्चों को ही सिखाना शुरू करें तो हर चीज हो जाएगी। That's why we started focusing on kids. So that was a necessity. बिजनेस के लिए हमने नहीं किया, right, या वो एक जरूरत सामने दिखी उसके लिए हम करते गए। हमारे बच्चों right, के अंदर ही वो वैल्यू एजुकेशन और ये सब चीजें कुछ पता ही नहीं है। right, भारत के right, बारे में कुछ पूछो तो वो पता नहीं है। right. ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है वो हमने ट्रेनिंग के थ्रू सिखाना शुरू किया है। So I'm curious, did you structure it? You say you're for profit. Was there a Yeah. reason why you said I'm not going to do non-profit? I mean, it has a social cost, what you're trying to do. So why did you do ये for profit, non-profit का जरा discussion में जरा pointer दो ना? या नॉन प्रॉफिट तो मुझे लगता है कुछ करना ही नहीं चाहिए, और उसका अनुभव भी मुझे बहुत बार अच्छा नहीं आया है। जिंदगी में या दुनिया में कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आती, और यदि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आती तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं क्यों चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जब हम अभी कॉर्पोरेट के लिए प्रोग्राम करते हैं तो वी नेवर कॉम्प्रोमाइज, वी चार्ज आवर फीस। लेकिन जब यूथ के लिए प्रोग्राम करते हैं तो वहां पर हम उनको बताते हैं कि भाई जो कुछ आप दे सकते हैं वो चार्जेस हमें दे दीजिए। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू पे फुल चार्जेस। और कई बार हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम भी लेते हैं। तो यदि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है तो कहीं से पैसा तो कमाना चाहिए। ऑप्शन इज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। So, कहीं से लेना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं देना है, ये तो करना ही पड़ेगा। That's why I prefer for profit business. Very good point. Very good point. Now, how big is your team? Team is very small. Actually, we are just 8 to 10 people. But Right. other team members, they are freelancers. I see. Whenever they conduct program, that time they come, they join us, they conduct the program and they go back.
So is that your model for your business, Yeah, that you have a bunch of yeah, freelancers? It works out much better that way rather than having full-time yeah, employees. yes, yes. We need not to invest lot of money. कम Huh, पैसे में भी काम चलता रहता है। और right, जब भी काम नहीं होता है अपने पास, तो यदि उनको पेमेंट करना ही है, तो जब हम फ्रीलांसर लेते हैं तो सिर्फ प्रोग्राम के लिए पेमेंट जाता है और बाद में हम अपने फ्री लेते हैं। right. But हाँ, Pundlik, you have a workforce. You have this team that is going to go on these things. How do you train them to your value set? How do you train them to your philosophy? You're the owner of the company. या So how do you say, this is my philosophy, this is what you should do? How do you do पहली that? पहली चीज ये है कि हम जिनको सिलेक्ट करते हैं, वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही बहुत हटके है। Huh, तो हम पहले लोगों को सिलेक्ट करते हैं, बाद में जो लोग अंदर आते हैं हम देखते हैं कि इनके अंदर सीखने की तैयारी है या नहीं, इनके right, अंदर कुछ वैल्यूज है या नहीं। और right, उसके बाद जो वैल्यूज हमें उनको देना है, जो चीजें हमें उनको सिखाना है, वो right. हम उनको पढ़ाते हैं, अलग अलग लोगों के पास लेके जाते हैं, उनसे पढ़वाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, और उसके बाद दे स्टार्ट गिविंग ट्रेनिंग। And then how do you do quality control? Like impact. What is the impact that you measure? Then all these trainings you do on the youth, different sections. How do you measure the impact of your training? वो तो बहुत, मतलब हर बार जैसे हमने बहुत सारे बच्चों के कैंप्स लिए हैं, हाँ, अभी तक तो कम से कम 10,000 बच्चों ने कैंप्स अटेंड किए हैं, बहुत जी, सारे यंगस्टर्स भी हैं। और पता है, अभी कहीं भी घूमता रहता हूँ पूरी भारत में या कहीं भी महाराष्ट्र में जहाँ जाता हूँ, तो एकदम अचानक से कोई ना कोई सामने आता है और बताता है कि सर हमने वो प्रोग्राम किया था आपके वायुवा थ्रू, एंड right, दैट हेल्प्ड मी इन माय लाइफ। तो ऐसे बहुत सारे अनजान लोग मिलते हैं, एक्चुअली वो जो बच्चे होते हैं तब उन्होंने किया होता है और अब तो मैं उनको पहचानता भी नहीं हूँ, लेकिन right. ऐसे बहुत सारे लोग सामने आते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि अरे जो कुछ हमने किया है उसका Right. इम्पैक्ट कुछ ना कुछ है सोसाइटी में। And But it when gives you satisfaction. talk about, but when you talk about leadership to these youth, give me Mhm. specifics on what leadership are you talking about? Are you talking about like civic leadership? Are you talking about ethical leadership? Ethics के बारे में बात करते हो? Like Mhm. attitudes, behavior, expectations of living. What exactly are you talking about? We focus on value-based leadership. Right. Like leadership is there, but at the same time we should have values. We should respect values. तो ये चीजें हमारे लीडर्स को सिखाना बहुत जरूरी है। नहीं ठीक तो है। आजकल हम कॉर्पोरेट में देखते ही हैं कि दो लीडर्स यदि सामने एक साथ काम करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें उनमें शुरू हो जाती हैं। और यदि हम 10 लीडर्स को एक साथ रखें तो हाँ, उनमें से वो क्या बोलते हैं ना, उसको कॉर्पोरेट झगड़ा वगैरह कुछ ना कुछ उनमें शुरू हो जाता है। तो ये right, चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए वैल्यू बेस्ड लीडरशिप शुड बी देयर। right. And what is the numbers of people you've trained so far in the last 4 years? Just a sense. Just give us a sense of numbers, approximately. More than 5,000. More than 5,000. Yeah, Wow. including In the 4 youngsters years you and have, right? yeah. And looking ahead, what are you expecting for YUI? You have a regional focus. Are you saying only Maharashtra you're focusing? Give us a sense of idea where you're going, No, with we this. are not focusing Maharashtra, Okay. but we started from like it was very small. We never Okay. invested a lot of money, so we started from Pune. Then we started expanding. We went covered Maharashtra. Now we are covering Maharashtra, MP, Gujarat, and so many states. And Right. after a few days, I'm sure that we'll cover India, means total Bharat, and we'll go abroad. You That is dropped what the I meant. keyword. You dropped the keyword money. I'm curious though. When you started with this project, how did you get your first money, or do you needed it at all? I mean, give us a sense of the money flow throughout this process. Anand, Not. when I returned from that bike yatra, Huh. that time I was serving for the nation. I was not earning a single penny, so I Right. was not having money at all. Right. First investment that was just 400 rupees, and what I did with that, I conducted a small program where only 10 people joined, and after that I got पहले बार कुछ छोटा सा पैसा हाथ में आया, तो उसी को हम इन्वेस्ट करते करते वायुवा बड़ा हुआ है। हमने बहुत Right. सारे कुछ इन्वेस्ट नहीं किया इसमें, जो Mm-hmm. प्रॉफिट आता था, जो पैसा आता था, उसी को इन्वेस्ट करते थे और बढ़ाते थे, और Right. ऐसे वायुवा बढ़ता गया। तो मैं यंगस्टर्स को ये हमेशा बताता हूँ, जहां कहीं जाता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, तो लोग पूछते हैं सर हम भी बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास सीड कैपिटल नहीं है। Right. कहीं से Right. सीख के आते हैं, कोई पढ़ाता है सीड कैपिटल जरूरी है। मैं बोलता हूँ सीड कैपिटल किस लिए जरूरी चाहिए? यदि आपके दिमाग में कुछ करने की चाहत है, यदि आप आपका पैशन फॉलो कर रहे हैं,
और आपके मन में यदि स्ट्रांग विल पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ सी कैपिटल। तो वो पूछते हैं सर आप बात करते हैं, बात करने में कुछ लगता नहीं, लेकिन आपको ये अनुभव है क्या? मैं कहता हूँ भाई मेरे दो स्टार्टअप हैं, दोनों सक्सेसफुल हैं और दोनों मैंने शुरुआत किए हैं विदाउट एनी कैपिटल। मतलब 400 500 1000 रुपए तो किसी का भी पॉकेट मनी आजकल होता ही है ना। राइट राइट राइट। बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। But और would मेरा you वो अनुभव also, भी है। but would you also advise people like you did to go around the country alone so they या get that, या you know, discipline and mindset and यस the, you know, the what is a very special quality, right? या To go alone in anything, right? सो मैं तो हर एक को एडवाइस करूंगा। और ये तो एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए ऐसे कुछ। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि पूरे भारत में उनको घुमाना चाहिए, लेकिन कहीं तो हमें अकेला जाना चाहिए। जब अकेला जाता है आदमी तो बहुत चीजें सीखने के मिलते हैं। मैंने ये बाइक यात्रा जब प्लान की थी तो उसमें मेरे साथ 4 5 लोग और आने वाले थे, लेकिन मेरे मेंटर हैं, मैं उनको मेंटर नहीं गुरु कहता हूँ, उनका नाम है स्वामी नित्यानंद, वो चेन्नई से है। उनसे मैं मिला, उनको बताया मेरा प्लान और बताया कि हम 4 5 लोग ऐसे ऐसे बाइक यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यदि तो मुझे स्वामी जी ने जो मित्रानंद जी जो थे उन्होंने बताया कि यदि जिंदगी में कुछ करना है और यदि सीखना है Right. तो आपको ये बाइक यात्रा अकेले करनी चाहिए। Right. मैंने सोचा अरे ये तो बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैंने शुरू किया क्योंकि मैं उन पे विश्वास करता हूँ और ही इज अ रियली एजुकेटेड एंड ग्रेट पर्सन। जब मैंने वो शुरू किया और 2 3 दिन बाद मैं अनुभव करता गया, जब आदमी अकेला कोई चीज करता है जो एडवेंचरस होती है तो जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें उससे सीखते हैं। क्योंकि यदि 2 4 लोग हैं तो हम बातें करेंगे, कुछ डायलॉग्स करेंगे, कुछ इधर उधर घूमेंगे, लेकिन जब आदमी अकेला होता है तो वो हमेशा सोचता रहता है एंड दैट इज कॉन्टेम्पलेशन। राइट। हाँ, तो अकेला जब गो अहेड सॉरी गो अहेड। जब आदमी अकेला होता है तभी उसके माइंड में कुछ अच्छी चीजें आ सकती हैं। लाइक वी कॉल इट क्या रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बड़े शब्द है उसके लिए। लेकिन मैं ये समझ गया हूँ कि जब आदमी अकेला बैठता है तभी उसी के दिमाग में कुछ अच्छी आइडिया, कुछ क्वालिटी चीजें आ सकती हैं। इसलिए अकेला रहना, अकेला घूमना, अकेला बैठना, मैं कुछ समय के लिए बात कर रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं। अकेला रहना बहुत जरूरी है। Right, and then you didn't have an itinerary as such, right? You slept anywhere, you ate everywhere, right? Yeah. You were a true free spirit, just going wherever you wanted to go, right? जहाँ बाइक जाती थी वहाँ मैं फॉलो करता था। Right, I guess that you bring that mindset to all your enterprises also, right? Yeah. So Aarti has a question. She says, what is your advice to entrepreneurs for dealing with day-to-day challenges faced by a startup? Day-to-day problems, I think we should be focused, means day-to-day problems जो हैं वो problems की हमें कैटेगरी करनी चाहिए कि कौन से problems हैं। यदि वो फाइनेंस और ये तरह के हैं तो हमें उससे मैनेज करने के लिए कुछ अलग तरीके सोचनी चाहिए। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है कि सबसे बड़े प्रॉब्लम जो होते हैं वो माइंड लेवल पे ही होते हैं। हम स्टार्टअप करते हैं और लोग पूछते रहते हैं, लोग आते रहते हैं और बताते हैं कि अरे ये तो हमने भी करके देखा था, कोई सक्सेसफुल नहीं होता। तो उसके लिए हमें स्ट्रांग माइंड होना और हमारे जो काम हमने जो लिया है उस पर फोकस्ड रहना, आई थिंक दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डील विद प्रॉब्लम्स। So Nitin Taylor has a question. I think, how do you fund your travel? मतलब फिर से इन्वेस्टमेंट और कैपिटल की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, आप इतना ट्रैवल करते हो, कैसे फंड करते हो ट्रैवल? अरे यार, जब ये अभी तो मैं खुद फंड करता हूँ, अभी बिजनेस करता हूँ, पैसे कमाता हूँ और खुद फिर घूमता रहता हूँ। लेकिन जब मैं बाइक यात्रा पे गया था, बाइक पे ऑल ओवर इंडिया, तो मेरे पास पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं था, इवन बाइक भी मेरी नहीं थी। तो मैंने एक से बाइक ली, एक आदमी से 500 रुपए ऐसे ही लिए और मैं चला गया। और पैसे कैसे मैनेज करना था मेरे दिमाग में पहले से था कि जहां मैं जाऊंगा, मैं कॉलेज में जाऊंगा, वहां पर इंटरेक्ट करूंगा यंगस्टर्स के साथ और उनसे कुछ मांगूंगा नहीं। यदि वो पैसा देते तो आई विल नॉट एक्सेप्ट द मनी, लेकिन मैं एक ही बात उनको पूछता था कि यदि आपको कुछ देना है तो आप मेरे बाइक में पेट्रोल डलवा सकते हैं। और मैं 21,000 किलोमीटर घुमा, कहीं भी मुझे पेट्रोल कम नहीं पड़ा या पैसे की जरूरत थी नहीं। खाने पीने के लिए कहीं भी खाता था, घरों में हो के। और अपने भारत में यदि आज भी कोई भी घूमता है और गाँव में जाता है तो खाना रहना ये चीजें तो आसानी से हो ही जाती है, उसका कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। राइट।
हाँ, तो मैं एक समझ सीख गया उससे कि अपना काम करते रहिए, पैशन फॉलो करते रहिए, पैसा आता रहता है। Good point, Pundlik. Now, when या you travel, though, we can do a whole session on your travel. But tell us some of the opinions and wants and needs of people out there. You met so many people. Do they have या like a common set of wants, wishes? What do they have? Aspiration. उनका aspiration क्या ambition क्या है? Can you just give like a 1 minute? Less अपने than a जो minute. Yeah, यंगस्टर्स के बारे में बात करें ना, yeah, या तो अपने देश में बहुत सारे यंगस्टर्स जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। दे हैव मेनी रोल मॉडल्स, दे वांट टू डू मेनी थिंग्स, बट उनको डर लगता है। वो करते कुछ नहीं है, वो प्लान करते हैं कागज पे कि मुझे जिंदगी में ये चीजें करनी है, लेकिन हाँ, तो उनको वो अपने प्लान करते रहते हैं और अपने आप ही उसमें ये सोचते रहते हैं कि यार ये करना बहुत मुश्किल है। तो यंगस्टर्स कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छा ट्रेनिंग देने वाले, अच्छे मेंटर, अच्छे गाइड, ये लोगों की कमतरता है। तो यदि उनको ये मिल जाए तो मुझे लगता है भारत में अपने यंगस्टर्स बहुत कुछ कर सकते हैं। right. And this is across the country. In every state, and every across अक्रॉस every. द कंट्री यंगस्टर्स का एक कॉमन प्रॉब्लम है। So, question from Priya Krishnamurthy: What was your greatest challenge in handling and reaching out to corporate? पर मुझे नहीं लगता कुछ चैलेंज उसमें होता है, क्योंकि रीचिंग आउट मतलब उनसे यदि एक प्रोग्राम अच्छा करते हैं तो अपने आप दो तीन प्रोग्राम आगे वही लोग अपने को देते हैं। तो रीचिंग आउट में कुछ प्रॉब्लम मैंने तो कभी फेस नहीं किया। जब हम गए, हमने एक्सप्लेन किया हमारे वाइवा के बारे में, तो दे हैप्पीली एग्री और उन्होंने हमारा प्रोफाइल देखा, हमारा अनुभव देखा, टीम मेंबर्स देखते हैं। तो वहां मुझे कुछ प्रॉब्लम रीचिंग आउट में मतलब उनसे उन तक पहुंचने में कुछ प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं। जो क्वेश्चन पूछा था कि कॉर्पोरेट तक जाने के लिए यदि कुछ प्रॉब्लम है, उसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं किया है अभी तक, क्योंकि मैं ये फोकस करता हूँ कि अपनी सर्विस जो है उस पर हम ज्यादा फोकस करें इंस्टेड ऑफ डूइंग मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ थिंग्स। यदि हम Right, सर्विस पे बहुत फोकस करते हैं तो अपने आप अपना मार्केटिंग होता रहता है और जहां हम जाते हैं वहां प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना पड़ता। but corporates कुछ impact पूछते हैं क्या? Previous जो आपने किया है ये, are they या asking वो you some specific, या जब हम specific जाते numbers? हैं हाँ, तो वो दूसरे लोगों से ये जानकारी सब लेते रहते हैं। right. उनके कुछ फ्रेंड्स होते हैं दूसरे कंपनी में जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया, उनका नाम वो हमें मानते हैं, वो कंपनी की डिटेल्स मानते हैं, उनसे बात करते हैं और जब उनको अच्छा लगता है तो दे कम विद अस। Gitesh has a question. Some incident which you always remember, some incident throughout your travels, I guess. व्हिच ट्रैवल? All the travels you did so far, any या specific incident which you'll always remember, like a life-turning incident? there are many experiences, but like I was traveling through Manipur, and हाँ, Manipur is a very dangerous place. Like yes, we think that Kashmir is the most dangerous place, but I think Manipur is 10 times uh, dangerous than Kashmir and other things. तो वहां पे मुझे वो माओवादी जो होते हैं उन्होंने किडनैप कर लिया था। किडनैप मतलब पकड़ा, हथियार वगैरह लगाए मुझे और मेरा बाइक लिया, कपड़े वगैरह जो चीजें मेरे पास थी वो सब ले लिया और मुझे वो अपने कैंप में लेके गए। तो वहां पर मैं सोचता रहता कि और वो मुझे पैसे मांग रहे थे। एक्चुअली लैंग्वेज तो हम समझ नहीं सकते थे एक दूसरों की, लेकिन दे स्टार्टेड आस्किंग मनी और मेरे पॉकेट में तो 70 रुपए थे उस समय बस। तो मैंने जो कुछ था वो लिया और उनके सामने रख दिया। वो बोले कि चिल्ला गए कि व्हाई व्हाट यू आर डूइंग दिस। तो वहां मुझे जो अभी मुझे लगता था कि अरे यार ये लोग तो मुझे मारने वाले ही हैं, क्योंकि उससे पहले एक आर्मी मेजर ने मुझे बता के रखा था कि यहाँ पर ये लोग बहुत डेंजर हैं, वो धमकाते हैं और मार भी सकते हैं, उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो मैं उनके सब वो बीच में शांत बैठा रहा, देखा और सोचता रहा कि अभी यहाँ से छूट बाहर जाए कैसे। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की। वहां पर मैं एक्चुअली बहुत सोचता रहता था कि अभी मैं वापस जा सकूंगा या नहीं, ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। तो बाद में उनका लीडर जो था उससे मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे सबसे पहली बात पूछी कि भाई तू इधर क्यों घूम रहा है। वो तो पढ़ा लिखा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा था। उसने पूछा कि तू इधर क्यों घूम रहा है इतने सुनसान जंगल में। तो मैंने बताया कि मैं देश देखना चाहता हूँ, देशवासियों को मिलना चाहता हूँ, यंगस्टर्स के साथ बातें कर रहा हूँ। तो वो मुझ पे चिल्ला गया, एकदम भड़क गया और बोला कि तू यदि भारत का काम कर रहा है तो हमारे देश में क्या कर रहा है। right, Like, he was thinking Manipur is a different country. right. और मैं चौंक गया कि भाई ये मेरा देश है, यहाँ मणिपुर नाम का एक स्टेट है, मैं यहाँ से घूम रहा हूँ और तू पूछता है मेरे देश में क्या करना। और पढ़ा लिखा आदमी,
तो बाद में मैंने उसको मेरा मकसद बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने मेरी जिंदगी का 2 साल देश की सेवा करना चाहता हूँ, और इस सेवा में मैं अनेक युवा के साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो Right. बाद में हम थोड़ा शांत हो गया, और उसने बाद में मुझे बोला कि अभी तू जा सकता है। और उससे पहले उसने एक बात कही कि मैं जो उस समय ट्रैवल कर रहा था, ही सेड दैट आई अप्रिशिएट योर करेज बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग थ्रू दिस एरिया, और उसने मुझे जाने दिया। तो ये और ऐसे अलग अलग बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे जो मुझे सिखाते थे कि कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन हमें हैप्पी और कूल रहना चाहिए। और यदि हम कूल रहते हैं तो वी कैन ओवरकम ऑन एनी सिचुएशन। कौन से भी सिचुएशन से हम बाहर आ सकते हैं। Right. Pundlik, we have to do another session on your travel experiences. Huh? I'll take one more question, last question. Okay. How do you Okay, convince? okay. There are a lot of cynical people out there, right? जो people like बोलते हैं कुछ अच्छा नहीं होगा, कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, खाली problems देखते हैं. So how do you हाँ, convince and show people that your efforts are making positive impact in society? मतलब जो लोग सोचते हैं कि कुछ अच्छा नहीं होगा। Yeah, like बहुत लोग होते हैं ना, तो how do you convince people यार, that you are हाँ, having a positive effect on society? यार ऐसे उनको कन्विंस करने की जरूरत है, ऐसा मुझे कभी लगता ही नहीं है। हाँ, वी शो देम रियल एग्जांपल्स। लाइक यदि जिंदगी में कोई पूछता है मुझे कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, आप क्या प्रयास कर रहे हैं, वो लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, लोग ऐसे ही हैं, लोग बदलने वाले नहीं हैं, तो उनको मैं प्रकाश अंते जैसे एग्जांपल्स और रोल मॉडल्स दिखाता हूँ, वहां लेके जाता हूँ। और जब आदमी वहां जाके आता है, वहां जाके मैं तो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम करता नहीं, कुछ गाइडेंस करता नहीं, कुछ मार्गदर्शन नहीं करता, कुछ बातें नहीं करता। आदमी वहां पर जाता है, देखता है, और वहां से आने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोगों को दिखा सकते हैं। और जब आदमी देखता है, अनुभव करता है, तो उसे अलग ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि right, हम 100 ट्रेनर्स को एक साथ लेकर भी ऐसे आदमी को कन्विंस करने का प्रयास करें, तो वो right, कन्विंस नहीं होंगे, लेकिन ये बात देखकर वो कन्विंस हो जाते हैं। right. तो दिस इज माय आइडिया फॉर सच पीपल। You also have another enterprise that you are doing. You just started 2 years ago. या Just like half a minute, can you talk about that enterprise? So in case people want to join with you, go on your, whatever your take your services. Please talk about that enterprise also. Okay, that our company's name is Swajan. Swa means our own, Jan means people. So we want to connect with our own people, like across the globe. Bharatiya people are there in all the countries. So वहां जाके वो लोगों से मिलना, ये टूरिज्म के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि विदाउट एनी रीजन नोबडी विल गो देयर एंड मीट सच पीपल। लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए स्वजन शुरू हुआ है। और दूसरी ये है कि हमें अपना देश पता नहीं है। लाइक देयर आर मेनी पीपल, उनको अपने भारत के बारे में पता नहीं है। लाइक कंबोडिया का पोस्टर मेरे पीछे अभी जो लगा है, कंबोडिया के बारे में पता नहीं है, जो एक समय में भारत का ही एक हिस्सा था, उसी के बारे में पता नहीं है। Right, तो ऐसे जो चीजें हैं, ऐसे जो देश हैं जहां हमारी संस्कृति अभी भी है, भारतीय संस्कृति, मैं उसको हिंदू संस्कृति नहीं कहूंगा, जो भारतीय संस्कृति हमारे पास है, हमारी अलग देश में है, वो सबको एक्सप्लोर करना, वहां जाना, वो देश समझना और अपनी संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझना, इसलिए स्वजन शुरू हुआ है। इसी के साथ हम हर तरह की टूर्स करते हैं। लाइक देयर आर कॉर्पोरेट टूर्स, देयर आर वाइल्ड लाइफ टूर्स, और जो टूरिज्म में होता है वो हर चीज हमारे पास भी है, वो भी हम करते रहते हैं, लेकिन ये हमारी स्पेशलिटी है कुछ अलग से। all right, great, Pundlik. I think that concludes our session for today because we went over time, but we had a great time listening to your stories. Thank you for your time. This is Vayu and Swajan from Jagriti Yatra. Yaro chalo. Thanks Anand. All right, thanks, Pundlik. Bye. Okay, welcome.